So now I invite Dr. Arihant Kumar Jain and Dr. Uma Shankar sir to connect with you and share and to ask what you have gained the experience from Dharma studies. Okay, thank you so much रेशमा मैडम। सभी ने अभी यहाँ पे, क्योंकि धर्म स्टडीज सभी भाषाओं को प्रस्तुत करता है, संस्कृत, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तो मैं आप सभी का स्वागत प्राकृत भाषा से भी करना चाहूँगा। अहम सव्वेसिम सागदम अभिनंदनम य करेमि। So what a joyous occasion it is to see our esteemed alumni back to their second home. आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन एक स्कूल और हमारे दोस्त जो होते हैं वो पुराने ही अच्छे लगते हैं ना? बिल्कुल। तो इसी मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस एलुमनाई मीट में। और कुछ लोगों के लिए हम लोग भी नए होंगे, क्योंकि हम और उमा शंकर जी, हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था 2022 में। तो उसके बाद के लोग तो हमें जानते हैं, लेकिन उसके पहले के जैसे मैडम लोग आए वो हमें नहीं जानते हैं। तो आई एम डॉक्टर अरिहंत फ्रॉम सेंटर फॉर स्टडीज इन जैनिज्म एंड हिज डॉक्टर उमा शंकर कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर योग शास्त्र, भारतीय संस्कृति पीठम, केजेसुमा इंस्टीट्यूट ऑफ धर्म स्टडीज। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए चेयर्स नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं रखना है यहाँ पे। तो मैं आप अभी बहुत सारे हमारे एलुमिनाइज ने बहुत अच्छे, जो कि अभी एक मुकाम पे पहुँच गए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अब मैं आप सभी को कनेक्ट करना चाहूँगा और आप सभी को अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा, और मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करूँगा। और क्वेश्चंस आप परेशान मत, डोंट नीड टू वरी, बिकॉज ये कोई सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके एक्सपीरियंस से क्वेश्चन आएंगे। सो कैन यू शेयर वन अनफॉरगेटेबल मेमोरी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी दैट मेक्स यू लाफ एवरी टाइम? हु विल स्पीक? कौन बताएगा? अरे इतने सारे लोग हैं, प्लीज। और वॉलंटियर इज देयर, प्लीज। कोई So raise your वॉलंटियर्स हैं क्या? प्लीज, अगर उनको माइक दे दें। ओके, प्लीज। कौन बोल रहा है? सबसे आपका अविस्मरणीय, आपका एक मेमोरी याद जो आपको हंसाता है आपके यहाँ के, प्लीज शेयर करें शॉर्ट में। ध्वनि इज रेडी। हाँ प्लीज, जल्दी। हाँ। Yes. Good afternoon, everyone. One memory that I have is we had done a skit on the myths of yoga, where we had introduced dog yoga, bear yoga, and Kundalini yoga. So I think that is something that I can never forget, because from the dialogues to all the costumes and everything, like me and my team had done it, and we even demonstrated the entire thing as it is what we had observed. So it was so funny that we had even got Patanjali ji in our, we have him right here. We had got him here and we just demonstrated it as it is. Someone being a dog, humans being dogs, and humans trying to drink and everything. So that is one memory that I will never forget. Another thing is we had done a small skit here, bunking our lectures, I'm very sorry. But yeah, we had done, if Monjulika goes to a yoga class, how will it happen? Okay. Yeah, that's it. These two memories I would like to share. Yes, thank you very much. Okay, great. So the और कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ और? हाँ प्लीज। Hi, this is Sneha. Hi, Sabir sir. In fact, the memory is related to Sabir sir only, and he just looked behind. So there was this lecture which we used to enjoy the most, because we never felt that we are studying. When he starts the session, it's always full of fun. So he started the topic, what is health? And that one topic, the entire session,
he take it through. And I was surprised to see that how come entire session you can talk only about one topic and everything was revolving around. I can never forget that topic about what is health actually. And it was full of jokes and fun. So we always enjoyed the entire year because of him. So thank you so much, sir. Okay, thank you. So the another question is कि which professor was known for giving the toughest assignment? जो सबसे ज्यादा toughest assignment आपको देता था वो कौन है? प्लीज कोई बताइए नाम प्लीज. दीप रुद्राक्ष सर. ओके. Right side of yours. Right side of yours. Listen to him. उमाशंकर सर. Okay, so the another question is a very universal question actually. This is, how many times did you bunk classes and what was your favorite excuse? किसी ने बंक नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया? आप लोग सच्चे धर्म स्टडीज के स्टूडेंट हैं, सच्चे. अच्छा, किसने कॉपीज में एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स काटते हैं? कौन प्रोफेसर है ऐसे? अच्छा, उमाशंकर सर. ब्रिजेश सर. ओके, हाँ अब बात. ओके. सो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका ज्ञान के बारे में पूछ लेते थोड़ा. जब आप घर से तैयार होकर आते थे क्लास के लिए और ऐसा क्षण जिसमें आपको ज्ञान हो गया कि अटैचमेंट खत्म होना चाहिए, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? ओके. और जब ऐसा एक्सपीरियंस जो समाधि जैसी अनुभूति हुई हो? सर 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 यस सर आपने वॉलेंटियर. हाँ उनको प्लीज, हाँ प्लीज बताइए. सर लाइक मैंने जब एमए ज्वाइन किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना फिलॉसफी होगा. टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था कोर्स, फिर पता चला कि या तो सिर्फ फिलॉसफी ही है, तो थोड़ा शौक तो लगा था. तब मुझे पहली बार मार्क्स से मुक्ति मिले, मार्क्स से कोई सारा क्या बोलते कनेक्शन छोड़ दिया सब जो भी. हाँ, मार्क्स का कोई ये नहीं था उसके बाद से कि कुछ जो मिल गया. ऐसा आपका एक्सपीरियंस जिसमें क्लास की बातें कम होती हुई फनी मूड में लोग ज्यादा या टीचर ज्यादा रहे हों, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस? ब्रिजेश सर. ये सर्वसम्मति से ब्रिजेश सर का नाम आता है इसमें. ब्रिजेश सर. ओके, इफ यू कुड रीलिव वन डे एट द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में एक दिन आपको ऐसा दिया जाए जो आप पहले जी चुके हैं, कौन सा दिन ऐसा होगा? कौन सा दिन ऐसा होगा कि आपको दोबारा जीना है? पर्टिकुलर ऐसा कुछ मेमोरेबल डे है आपके लिए जब गोल्ड मेडल मिला हो? कॉन्वोकेशन. Convocation. This side. Hello. प्लीज प्लीज बताइए. Hello. Hello. This side. Convocation. I would like to leave. I would like to Please relive बता रहे, that बता रहे. day. I would like to relive that day once again, a convocation day. It was very heart touching and very moving. Great. Okay, so हाँ please. of जश्न इतिहास, our fest, MAISC का fest था, and we all thoroughly enjoyed it, so we cannot forget those days. Thank you. Okay, which professor or faculty member was the most memorable for you and why? यार मैंने इसलिए पूछा था कोई मेरा नाम भी ले दे. ठीक है, हम अगली एलुमनाई में देखेंगे, अपने स्टूडेंट भी तैयार करेंगे. ओके, सो व्हाट्स द वन थिंग यू मिस द मोस्ट अबाउट योर टाइम हियर? आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? ऐसी कौन सी चीज मिस करते हो जब आप यहाँ पर थे
हाँ प्लीज हेलो हेलो। वैसे तो सभी प्लीज प्लीज सुनिए, सब उनको सुनिए। हाँ, वैसे तो सभी प्रोफेसर को मिस करते, क्योंकि वो हमारे साथ इतने फ्रेंडशिप से रहते थे कि हमें वो डिफरेंस ही पता नहीं चलता था कि वो प्रोफेसर है या हम स्टूडेंट है, ये कोई भी नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो संदीप सोलंकी सर, तो उनका जो संदीप सोलंकी सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल के बारे में, स्पेसिफिकली योगा शास्त्र में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टॉपिक्स उन्होंने इतने प्रिसाइजली डिफाइन किए कि वो हम कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते। और उनके खास बात थी, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे उनको या डाउट पूछे, आ जाओ सामने इधर तो जिसको डाउट है वो तो कभी वो डाउट परमानेंटली उसका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल प्रोफेसर, थैंक यू संदीप सोलंकी सर। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट एन अमेजिंग दिस सेशन विद यू ऑल। इस सेशन का जो हम अंत है, इस सेशन इस कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहेंगे, क्योंकि हम धर्मा स्टडीज़ में हैं और हमारे धर्मा स्टडीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, महत्ता है यहाँ की चीज़ों के लिए। तो कुछ पंक्तियों से इसका समापन करना चाहूँगा इस सेशन का, इसके बाद चलेगा। आओ चले वेद पुराणों की ओर, आगम त्रिपिटक उपनिषदों की ओर, हटाएं धूल अज्ञान की, तर्कहीन भ्रांति और मिथ्या ज्ञान की, क्योंकि शास्त्रों की दूरी ने हमें भटका दिया, पाश्चात्य संस्कृति ने हमें भ्रमा दिया। था भारत विश्व गुरु जिसके बल पर उस तत्व ज्ञान को हमने भुला दिया। और कब तक आधुनिक शिक्षा के नाम पर शास्त्रों की उपेक्षा करते रहेंगे? कब तक आधुनिक होने के भ्रम में सिद्धांतों से समझौता करते रहेंगे? है ज़रूरी आज हमें अगर तकनीकी विज्ञान की, अर्थ इसका ये नहीं कि हम खो दें निधि आत्मज्ञान की। अब तक हम जो पढ़ते आए वो सीमित विज्ञान है, शास्त्रों में जो रचा गया ईश्वर का केवल ज्ञान है। आओ सीखें फिर से हम सब अपनी प्राच्य विद्याओं को, श्रमण और वैदिक परंपरा की समृद्ध प्राचीन ऋचाओं को, सीखें उन भाषाओं को जिनमें ये शास्त्र रचे हैं, प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, जो ज्ञान विज्ञान से भरे हैं। खोजें साधक गुरुवर ऐसे जो हमको सिखलाएं ये, अज्ञान तिमिर को दूर करें और जीवन सफल बनाएं ये। फिर जाने दर्शन के सच्चे मर्म को, परिष्कृत करें अपने गुण धर्म को, पुरुषार्थ से ही भाग्य है ये जानकर दे सम्यक रूप अपने कर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद।